سیدی یا نور اللہ۔ کریم خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنایا ہے۔ ربیع النور شریف کا یہ مہینہ ہے عظمتوں والا، جس کے اندر روزانہ حضور علیہ السلام کی سیرت پر حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آج بھی کہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح الحمدللہ رب العالمین ہے کہ کریم خدا تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اسی طرح محبوب علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین نبی بن کر آئے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کو انسانوں سے جنوں سے بھی زیادہ نباتات، حیوانات اور دیگر جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ زیادہ پہچانتی اور جانتی اور مانتی ہیں۔ کل آپ نے سنا کہ اونٹ کس طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور کس طرح حضور علیہ السلام کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہے۔ اور آج دیکھیے کہ بکریوں کے بارے میں کہ یہ بکریاں جو ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کو آخری نبی جانتی بھی ہیں، آخری نبی مانتی بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین نبی بھی مانتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ جو ہے وہ انصار صحابہ کے ساتھ آپ علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر بکریاں موجود تھیں، تو حضور علیہ السلام کی طرف وہ بکریاں بڑھنے لگیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو بکریاں اس باغ میں موجود تھیں، جیسے رحمت للعالمین نبی نے اس باغ میں قدم رکھا وہ بکریاں حضور علیہ السلام کی طرف آنے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ان بکریوں نے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں سجدہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ یہ منظر دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آشش کر اٹھتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں ہو کر آپ کو سجدہ کر رہی ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت کو پہچانتی ہیں، آپ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو پھر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ضرور حکم دیتا عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میری شریعت میں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوگا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ چیز ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی رسالت کو، حضور علیہ السلام کی نبوت کو کس قدر پہچانتی ہیں اور کس قدر حضور سے محبت کرتی ہیں کہ وہ دوڑ کر حضور کے قدموں میں آ کر گر جاتی ہیں اور سجدے میں لپٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا ایک اور صحابی رسول حضرت اللہ تعالی کرتے نے بکری ذبح کرنا چاہا، اس نے پنا ذبح کرنے کے لیے کہ جیسے بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس نے لٹایا تو وہ بکری وہاں سے دوڑ گئی، اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔
अल्लाह अकबर। जैसे वो बकरी छूटी है ना, वो बकरी छूट कर अपने घर की तरफ नहीं गई, वो बकरी छूट कर किसी चारे की तरफ बाहर तरफ नहीं, वो बकरी उस आप से छूट उसने वो इख्तियार किया है जिस जगह पर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हुजूर लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां तशरीफ फरमा थे, वो बकरी दौड़ती हुई हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आ जाती है। जैसे हुजूर के कदमों में पहुंचती है, वो कसाब उसके तरफ दौड़ता दौड़ता वहां पर पहुंचता है और उस बकरी की टांग को पकड़ता है और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बकरी अर्ज गुजार होती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए इसका हाल। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस बकरी को फरमाया कि ऐ बकरी, तू अल्लाह की रजा के ऊपर सब्र कर ले। यानी कि हलाल चीज है, ये तो नहीं है कि बस ज़िबा करने के लिए इजाजत ही नहीं देनी। हुजूर ने फरमाया बकरी तू अल्लाह की रजा पर सब्र कर। और उस कसाब को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस खुदा से डर और खौफ कर, इसे ले जा ज़िबा की तरफ, लेकिन घसीट कर नहीं, जुल्म करके नहीं, इसको मार पीट कर नहीं, इसको डरा धमका कर नहीं, बल्कि प्यार से मोहब्बत से इसे वहां जा पर लेके जाए। तो ये पता ये चलता है कि जैसे खुदा फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, जब तुम्हारे ऊपर तुम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर लो ना, हजूर की पाक बारगाह में आ जाओ। बस हजूर की पाक बारगाह में आना तुम्हारा काम है, तुम्हारे बिगड़े संवारना मैं खुदा का काम। तो बकरी पहचानती है कि एक दर है वो रहमतुल लिल आलमीन का नबी का है कि जहां मैं जाऊंगी मेरी दाद रसी होगी, जहां मैं जाऊंगी मेरी तकलीफ में कमी आएगी, जहां मैं जाऊंगी मेरी परेशानी में कमी आएगी, जहां मैं जाऊंगी मेरे ऊपर अल्लाह के महबूब जो है वो रहमत नाज़िल फरमा देंगे, वो यही है। अब दूसरे हदीस मुबारक एक और समात कीजिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप बयान करते हैं कि एक नौ उम्र यानी कि नौजवान लड़का बकरियां चरा रहा था, तो हुजूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वहां से गुजर होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम उस नौजवान से कहते हैं कि हमें जो है वो दूध चाहिए, क्या हमें बकरियों का दूध दे सकता है? वो नौ उम्र जवान लड़का कहता है, अमानतदार था, वो अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो जो है वो चराने वाला हूँ, इन बकरियों का मालिक तो और है, मैं अमानत में कैसे खयानत करूं? मैं तो एक बकरियां चराने वाला हूं, लिहाजा मैं दूध कैसे दे सकता हूं? तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, इन बकरियों में बता कोई ऐसी बकरी है जो इस काबिल ही ना हो कि वो दूध देने के काबिल हो। उसने कहा, हजूर अलैहिस्सलाम फरमाया अगर हम ऐसी बकरी से जो कि अभी इस हालत पर भी ना पहुंची हो, अगर हम उससे दूध ले ले तो क्या तुझे कोई इस पर परेशानी तो नहीं है? अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर क्या परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो तो दूध देने के काबिल ही नहीं है, वो तो मालिक के लिए उसने तो दूध देना ही नहीं है, तो लिहाजा उसकी अमानत दूध की मेरे पास तो आती नहीं। तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा एक बकरी लेकर आ। वो लेकर आया जो पठ थी, अभी उसके दूध के थन जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो उसके जिस्म के साथ लगे हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के पास आती है तो रहमतल लिल आलमीन नबी अपने जो है वो शफकत वाले हाथों को, यदुल्ला वाले हाथों को, वो प्यारे प्यारे हाथों को हजूर उसके कमर पर फेरते हैं और उसके थनों पर हाथ लगाते हैं और हजूर फरमाते हैं जाओ बर्तन लेकर आओ, और वो उसके थन भी बड़े हो जाते हैं, दूध भी भर आता है और हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब इसका दूध निकालो। दूध निकाला जाता है, हजूर खुद भी तनावल फरमाते हैं, हजूर के साथ सहाबा भी तनावल फरमाते हैं, वो नौजवान खुद तनावल फरमाता है और फिर हजूर अलैहिस्सलाम इसी तरह फिर निकालते हैं, फिर देते हैं और फिर हजूर अलैहिस्सलाम दोबारा उस बकरी के ऊपर जो अल्लाह ने चाहा आप पढ़ते हैं और अपना शफकत वाला हाथ फेरते हैं, वो बकरी दोबारा वो पहली हालत में आ जाती है, दोबारा उसके थन जो है वो जिस्म के साथ सिमट जाते हैं और वो दौड़ती हुई वो बकरी खुशी के साथ वो अपने रेवड़ में जाकर चली जाती है। गोया वो खुश हो रही है कि अगर हम आप जो है वो बात करें तो वो गोया के दुनिया के रहने वाले सभी इंसानों को और जानवरों को
अपनी बोली और जबान में कह रही होगी कि ए च्यूंटी लुकमान अलैहिस्सलाम, ए सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों पर आने वाली, तो नाज कर रही थी कि मैं नाज करती हूँ कि मुझे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हथेली पर उठाया है, इस बात पर कि मैंने कहा है कि ए च्यूंटियों अपनी बिलों में चली जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेखबरी में उनके पांव के नीचे आकर रौंद न दी जाओ। और इस बात को सुलेमान पैगंबर सुनते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, करीब आते हैं, लाखों च्यूंटियों में से एक उसी च्यूंटी को उठाते हैं जिसका मुकद्दर संवरता है, नबी पैगंबर की हथेली पर आती है, तो बकरी अपनी आवाज में कह रही होगी, ए च्यूंटी तू नाज कर रही थी कि सुलेमान पैगंबर की हथेली पर आई हूं, तो मैं नाज क्यों ना करूं, तो मैं तो नबियों के इमाम के हाथ के नीचे आई हूं, और नबियों के इमाम ने मेरे से जो है वो दूध भी पिया है, मेरा दूध हासिल भी किया है, मुझे पहली हालत में लुटा भी दिया है, और मैं आज जो है वो उस खुदा का शुक्र क्यों ना अदा करूं जिस खुदा ने जिस नबी की खातिर कायनात को बनाया, कायनात को सजाया, बल्कि खुद खुदा होना ज़ाहिर फरमा दिया। तो ये थी बकरियों का हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना। और भी काफ़ी हदीसें मुबारक हैं और ऑथेंटिक ये रवायत हैं जो मौजूद हैं बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, निसाई में, इब्ने माजा में, अबू दाऊद में, अबू याला में, दीगर बड़ी बड़ी कुतुब हदीस में ये जो है वो हदीसें मौजूद हैं कि उन्होंने कैसे हुज़ूर से मोहब्बत की है। अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला बनाए, सही मानों में इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए, सही मानों में जिक्र मुस्तफ़ा करने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, उस पर अमल करने वाला बनाए। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु ला